Hello students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to the first lecture of our new chapter and that is surface chemistry. देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या-क्या चीजें पढ़ने वाले हैं. In this lesson, we will study surface related properties of matter such as adsorption, colloids and emulsions. Why do we use activated charcoal in gas masks or animal charcoal in cane sugar juice in the manufacture of sugar? So, इन क्वेश्चंस के आंसर्स और इनके अलावा कई और क्वेश्चंस के आंसर्स इस चैप्टर में आंसर होंगे. द नेचर ऑफ कोलॉइडल स्टेट. कोलॉइड एक स्टेट होती है, तो कोलॉइडल स्टेट का नेचर, वेरियस टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, their preparation and general properties have also been covered. You will be keen to know how one electrolyte is more effective than the other to coagulate a colloid, or what happens when two colloids are mixed. तो ये सारी चीजें भी कवर करी जाएंगी कि how one electrolyte is more effective than the other to coagulate a colloid, or what happens when two colloids are mixed. So these are the questions which will be answered in this chapter. And this, the basic chemistry involved in the preparation and properties of emulsions have also been covered. So ये है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कि हम इसमें क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक बार जरा सिलेबस देख लेते हैं कि आईआईटी और नीट में क्या-क्या टॉपिक्स इस चैप्टर से पूछे जाते हैं. आइए अब हम देखते हैं द सिलेबस रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज आईआईटी एंड नीट. तो इस चैप्टर में जो जो चीजें पूछी जाती हैं, दे आर एलिमेंट्री कंसेप्ट्स of adsorption, colloids, types, methods of preparation and general properties of colloids, elementary ideas of emulsions, surfactants and micelles. So these are the topics which we will cover in this chapter. तो आइए स्टार्ट करते हैं. आगे देखते हैं. There are many properties of matter which are related to their surface. Such properties become predominant if the substance is in finely divided form or if its surface is rough. तो जो surface से related properties होती हैं वो ज़्यादा dominant हो जाती हैं तब जब substance is in finely divided form or if its surface is rough. Under these conditions, the surface area increases enormously and large amount of material is present in the surface. तो under these conditions, या तो वो finely divided form में हो या फिर उसका surface rough हो. तो under these conditions, the surface area increases enormously and large amount of material is present in the surface. The surface related properties of matter are adsorption, colloidal state and emulsions. So these are the properties which we will cover in this chapter. Surface related properties: adsorption, colloidal state and emulsions. तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं with our first surface related property and that is adsorption. हम स्टार्ट करते हैं with the first topic of this chapter and that is adsorption. Suppose we have a substance either in the liquid or solid form. Let us consider a molecule
इन द बल्क ऑफ द सब्सटेंस। बल्क मतलब कहीं बीच में, सरफेस को छोड़ के जो भी अंदर के पार्ट है उनको क्या कहते हैं हम, बल्क ऑफ द सब्सटेंस। सो बेसिकली बल्क अंदर वाला होता है और बाहर वाला सरफेस होता है। सो लेट अस कंसिडर अ मॉलिक्यूल in the bulk of the substance. It experiences forces of attraction uniformly from all sides by neighboring molecules. अगर कोई मॉलिक्यूल बल्क में है, मतलब मान लो ये एक सब्सटेंस लिया और बीच में कहीं कोई मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किया। अब ये जो मॉलिक्यूल है, इट इज एक्सपीरियंसिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम ऑल साइड्स, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हर डायरेक्शन से इसे इक्वल अमाउंट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही हैं। देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ये सारी फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल। अब हम कंसिडर करते हैं मॉलिक्यूल्स विच आर ऑन द सरफेस। अभी हमने देखा मॉलिक्यूल इन द बल्क, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। इफ वी कंसिडर अ मॉलिक्यूल नियर इट्स सरफेस, वी फाइंड दैट सच अ मॉलिक्यूल is not bonded to other molecules from all sides but has certain unutilized valencies as there are no molecules above the surface. जो बल्क में है वो तो हर दिशा से बॉन्ड बना रहा है या हर दिशा से बॉन्डेड है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, पर जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है वो हर दिशा में तो बॉन्डेड नहीं है ना, क्योंकि ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं उनके, तो वो सिर्फ नीचे नीचे से बॉन्डेड है। यानी इसका मतलब दे हैव सम अनयूटिलाइज्ड वैलेंसीज एज देयर आर नो मॉलिक्यूल्स अबव द सरफेस। इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द अनयूटिलाइज्ड वैलेंसीज, द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस अट्रैक्ट and retain other molecular species when the substance is brought in contact with them. तो इसका मतलब है कि ये जो अनयूटिलाइज्ड वैलेंसीज हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनको अपने ऊपर रिटेन रखते हैं when the substance is brought in contact with them. अब देखिए, the substances which has different concentrations at the surface than in the bulk of the adjoining faces is said to be adsorbed. जो भी substance है जिसका concentration surface पर ज्यादा है as compared to the bulk, हम कहेंगे वो substance adsorb हो गया। The phenomena of existence of a substance in different concentrations at the surface of another substance than in the bulk phase is called adsorption. The phenomena of existence of a substance in different concentrations at the surface of another substance than in the bulk phase is called adsorption. यानी कोई अगर सब्सटेंस है और उसके सरफेस पर दूसरे सब्सटेंस का कंसंट्रेशन डिफरेंट है एज कंपेयर टू बल्क, बल्क में बहुत कम होगा, ये सरफेस पर ज्यादा होगा, सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज adsorption, कि देयर आर डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ द सब्सटेंस ऑन द सरफेस as compared to the bulk phase is called adsorption. देखिए, the substance whose surface adsorbs molecular species of another substance is called adsorbent and the substance which gets adsorbed is called adsorbate. जैसे हमारे लाइफ में कंटिन्यूअसली एड्सॉर्प्शन प्रोसेसेस आप देख सकते हैं,
जैसे ये हमारा बोर्ड है, तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये कंटिन्यूअसली इस बोर्ड के सरफेस पर आकर एड्सॉर्ब हो रही हैं, बोर्ड के सरफेस पर चिपक रही है। या धूल मिट्टी है, अगर ये बोर्ड ऐसे ही थोड़े टाइम रखा रहेगा तो इस बोर्ड के ऊपर धूल मिट्टी की लेयर चढ़ जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, ये जो धूल है वो आकर इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हो गई। यानी इस केस में जो बोर्ड है वो कहलाएगा एड्सॉर्बेंट, और जो धूल मिट्टी इसके ऊपर आकर लग गई वो कहलाएगी एड्सॉर्बेट। द सब्सटेंस हुज सरफेस एड्सॉर्ब्स molecular species of another substance is called adsorbent, and the substance which gets adsorbed is called adsorbate. आगे देखिए डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव adsorption. If the concentration of a substance at the surface of another substance is more than in the bulk of the adjoining faces, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। कहने का मतलब कि अगर किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन सरफेस पर ज्यादा है, किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर ज्यादा है एज कंपेयर टू बल्क ऑफ द सब्सटेंस, देन सच टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। जैसे ये बोर्ड वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इस बोर्ड के ऊपर धूल आकर चिपक रही है। अब जो धूल का कंसंट्रेशन है वो बोर्ड के सरफेस पर ज्यादा है एज कंपेयर टू बोर्ड के बल्क में। बोर्ड के अंदर तक तो धूल ज्यादा जाएगी नहीं, जो भी धूल होगी वो बोर्ड के सरफेस पर ही रह जाएगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। इस केस में सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द बल्क। ऑन द अदर हैंड, if the concentration of a substance at the surface of another substance is less than in the bulk of the adjoining faces, it is called negative adsorption. This type of adsorption takes place only in case of solutions. जैसे मान लीजिए हमारे पास वाटर है, एक ग्लास में पानी है और हमने उसमें चॉक डिप करी, तो जो वाटर है वो बल्क में ज्यादा पाया जाएगा एज कंपेयर टू द सरफेस। या फिर स्पंज डिप किया तो जो भी वाटर है वो स्पंज के बल्क में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सरफेस। तो सच टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड एज नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। दिस टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस ओनली इन केस ऑफ सॉल्यूशंस। केवल सॉल्यूशंस में ही ऐसा पॉसिबल है कि वो बल्क में ज्यादा पाए जाएंगे एज कंपेयर टू द सरफेस। जनरली जो भी चीज एड्सॉर्ब होगी उसका कंसंट्रेशन सरफेस पर ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बल्क। लेट अस लुक एट few examples of adsorption. Example, charcoal adsorbs coloring matter in solutions and is used to decolorize brown cane juice. तो जो शुगर केन का जूस होता है वो ब्राउन कलर का होता है और इसलिए हम उसमें कुछ चारकोल ऐड कर देते हैं। चारकोल क्या करता है, जितने भी कलरिंग सब्सटेंसेस हैं उनको एड्सॉर्ब कर लेता है। तो ये जो ब्राउन कलर के सब्सटेंसेस हैं उनको चारकोल अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेता है और इसलिए जो शुगर हम देखते हैं वो कलरलेस होती है। फिर दूसरा, एंड कॉलॉइडल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को कॉलॉइडल फॉर्म में जब लिया जाता है तो इट इज यूज्ड in the purification of water because of its adsorbing properties. जो कोलॉइडल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये impurities को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेता है, so it is used in the purification of water. Gases and liquids adsorbed on the surface of a solid are called adsorbates. यानी इस केस में ये जो कलरिंग मैटर है
वो एड्सॉर्बेट है और जो चारकोल है वो एड्सॉर्बेंट है। देखिए, it should be clearly understood that though adsorption is a surface phenomena, the extent and firmness of adsorption are dependent to a great extent on the nature of the adsorbent and adsorbate. तो एक्सटेंट एंड फर्मनेस यानी किस हद तक एड्सॉर्प्शन हुआ है ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट. लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड अब्सॉर्प्शन. Adsorption is different from absorption. When a substance is uniformly distributed throughout the bulk of another substances, this shows that absorption has taken place. तो अगर पूरे बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मतलब absorption has taken place. It occurs at a uniform rate throughout the body of the material. Let us look at adsorption. On the contrary, adsorption involves unequal distribution of the molecular species in the bulk and the surface. It is a surface phenomena. तो adsorption में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉलिक्यूलर स्पीशीज का इन द बल्क एंड द सरफेस. इट इज अ सरफेस फिनोमेना. इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एट द इक्विलिब्रियम. मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा फास्ट रेट से एड्सॉर्प्शन होगा और जैसे जैसे इक्विलिब्रियम नजदीक आता जाएगा इसका रेट स्लो होता जाएगा. The forces involved in adsorption are either weak van der Waals forces or strong chemical bond forces. तो और डिटेल में हम अभी ये आगे देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस कब इन्वॉल्व होती हैं. पर एड्सॉर्प्शन में वीक van der Waals फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं या फिर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड वाली फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं. इन सर्टन केसेस बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड इट इज नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. Such substance is said to be sorbed and the phenomena is known as sorption. तो कभी कभी दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, एड्सॉर्प्शन एज वेल एज एब्सॉर्प्शन, एंड इट इज नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू ऑफ देम. Such a substance is said to be sorbed and the phenomena is known as sorption. The next topic which we will cover is types of adsorption. Basically, there are two types of adsorption. One is physisorption and the other is chemisorption. Physisorption can also be called as physical adsorption and chemisorption can also be called as chemical adsorption. तो आइए अब इनके बीच में हम डिफरेंसेस देखते हैं और डिफरेंसेस को अगर हम देखेंगे तो इनकी डेफिनेशंस भी हमें अपने आप क्लियर होती जाएंगी. सबसे पहले फिजिसॉर्प्शन. It is caused by intermolecular van der Waals forces. फिजिसॉर्प्शन का कॉज क्या होता है? इंटरमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वीक van der Waals फोर्सेस होती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, whereas chemical adsorption is caused by chemical bond formation. chemical adsorption के केस में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट, फिजिसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस.
यानी फिजिक्स ऑप्शन एड्सॉर्बेट के नेचर पर ही डिपेंड करता है. Easily liquefiable gases are adsorbed readily. वो gases which are easier to liquefy, they are adsorbed readily. On the other hand, chemisorption is much more specific and depends on the nature of both the adsorbate and adsorbent. Chemisorption ज़्यादा specific होता है और दोनों के ही नेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि इन द केस ऑफ केमिसॉर्प्शन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और केमिकल बॉन्ड्स तो कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के बीच में ही बन सकते हैं. इस वजह से केमिसॉर्प्शन दोनों के ही नेचर पर डिपेंड करता है एंड इट इज मच मोर स्पेसिफिक. whereas physisorption depends only on the nature of the gas and easily liquefiable gases are adsorbed readily. कौन सी गैसेस इजीली लिक्विफाइबल होती है? वो गैसेस जिनमें गैस गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो, ऐसी गैसेस ज्यादा इजी टू लिक्विफाई होती है. और वॉन्डर वॉल कांस्टेंट के टर्म में, जो आपने रियल गैसेस में पढ़ा होगा, उनके टर्म्स में हम ये कहते हैं कि वो गैसेस जिनका वॉन्डर वॉल कांस्टेंट ए बड़ा होता है, ऐसी गैसेस आर इजियर टू लिक्विफाई. ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, दे आर इजी टू लिक्विफाई. सो दीज आर द फर्स्ट टू डिफरेंसेस. नाउ वी विल सी some more differences between physisorption and chemisorption. Next is heat of adsorption is small, about 5 kilocalories per mole. क्योंकि यहां पर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज स्मॉल. whereas in chemisorption the heat of adsorption is very large, 20 to 100 kilocalories per mole. क्योंकि यहां पर केमिकल बॉन्ड बन रहा है विच इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो इसलिए हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन लार्ज होती है. physisorption is a reversible process, whereas chemisorption is a irreversible process. Again reason is same, because यहां पर वीक फोर्सेस की वजह से एड्सॉर्प्शन हो रहा है, जबकि यहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से एड्सॉर्प्शन होता है. नेक्स्ट इज physisorption forms multimolecular layers on adsorbent surface. multimolecular layers का मतलब क्या है कि जो एड्सॉर्बेट है वो पहले एक लेयर बनाएगा एड्सॉर्बेंट के ऊपर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस तरह से जैसे टेबल पर धूल जमती है तो धूल की लेयर्स बनती जाती है ना, तो यहां पर मल्टी मॉलिकुलर लेयर्स बनती हैं. जबकि केमिसॉर्प्शन फॉर्म्स यूनिमॉलिकुलर लेयर, यानी एक ही लेयर का फॉर्मेशन होता है इन द केस ऑफ केमिसॉर्प्शन. तो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द केस ऑफ टेम्परेचर. physisorption की जब बात होती है तो physisorption occurs at low temperature and it decreases with increase in temperature. अगर टेम्परेचर लो होगा तो कम टेम्परेचर पे गैसेस की वेलोसिटी कम होगी, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वेलोसिटी अगर कम होगी उनकी तो वो इजीली आकर किसी सरफेस पर सेटल हो सकते हैं. सो physisorption occurs at low temperature and it decreases with increase in temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसेस की वेलोसिटी बढ़ जाएंगी और वो एड्सॉर्ब उतने अच्छे से किसी सरफेस पर नहीं हो पाएंगी. So it decreases with increase in temperature. But अगर chemisoption की बात करें, chemisoption increases with increase of temperature. ऐसा क्यों? आप सोचिए एक बार. देखिए chemisoption के केस में एक केमिकल बॉन्ड बनना है और हम जानते हैं कि जो भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन यानी जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका रेट टेम्परेचर के साथ बढ़ता जाता है. So chemisoption increases with increase of temperature, whereas physisorption decreases with increase in temperature. फिर बात करते हैं अब हम प्रेशर की. Increase of pressure increases adsorption. So अगर गैसेस पे प्रेशर हाई होगा
तो गैसेस ज्यादा अच्छे से एड्सॉर्ब होंगी. So increase of pressure increases adsorption. In the case of chemisorption also, high pressure is favorable, but decrease of pressure does not cause desorption. क्योंकि यहां पर केमिकल बॉन्ड्स बनने हैं, तो अगर प्रेशर हम कम भी करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे. सो डिक्रीज ऑफ प्रेशर डज नॉट कॉज desorption. इस ऑप्शन के केस में equilibrium is attained readily and it is reversible, while in the case of chemisorption equilibrium is attained slowly and mostly not reversible. फिजिक्स ऑप्शन में वीक फोर्सेस हैं तो वो रिवर्स किया जा सकता है, जबकि केमिस ऑप्शन के केस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम है इट इज मोस्टली नॉट रिवर्सिबल. एंड सिंस यहां पर एक केमिकल बॉन्ड बनना है जो कि एक थोड़ा स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस, सो इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड स्लोली एंड इट इज मोस्टली नॉट रिवर्सिबल. नेक्स्ट हम बात करते हैं द enthalpy of adsorption. The adsorption of one substance on the surface of another leads to the existence of new types of forces between them. Therefore, it is an exothermic process and is accompanied by the release of energy. जब भी नई फोर्सेस फॉर्म होती हैं तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है. सो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी. द इंथैल्पी और heat of adsorption is defined as the heat energy evolved when 1 mole of adsorbate is adsorbed on the surface of adsorbent. Since physical adsorption involves weak forces of attraction between the molecules of the adsorbent and the adsorbate, the heat of physisorption is generally low, of the order of 20 to 40 kilojoules per mole. Chemical adsorption, on the other hand, involves strong chemical bond formation and the heat of chemisorption is quite high, of the order of 80 to 400 kilojoules per mole. Chemisorption में strong chemical bonds बनते हैं इसलिए ज्यादा heat release होती है as compared to physisorption of the order of 80 to 400 kilojoules per mole. Begin with a very important topic, and that is adsorption of gases on solids. आइए स्टार्ट करें. The extent of adsorption of a gas on the surface of a solid depends on the following factors. Number 1, nature of gas. Second, nature of solid. Third, specific area of solid. Fourth, pressure of a gas. Fifth, temperature. And sixth, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड. तो अब एक एक करके ये सारे फैक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये फैक्टर्स किसी गैस का एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन अ सॉलिड को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो आइए लेट अस बिगिन विथ ईच ऑफ दीज केसेस इंडिविजुअली. देखते हैं कि नेचर ऑफ सॉलिड से किस तरह से फर्क पड़ता है. Activated charcoal is the most common adsorbent for easily liquefiable gases. Poisonous gases such as H2S, COCl2, Cl2 and SO2 fall in this group. Therefore, it is used in gas mask. So activated charcoal gas mask में use होता है और ये पॉइजनस गैसेस को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है. अदर गैसेस सच एज O2, H2
and N2 adsorb more on metals such as nickel, platinum, and palladium at high temperature. So easily liquefiable gases, which are poisonous gases are basically easily liquefiable also. So easily liquefiable gases are adsorbed more readily on activated charcoal, whereas O2, H2 and N2, these gases are adsorbed more on metals such as nickel, platinum and palladium at high temperature. At the specific area of solid, किस तरह से स्पेसिफिक एरिया ऑफ सॉलिड से किसी गैस के एड्सॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है. द स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन एड्सॉर्बेंट is the surface area available for adsorption per gram of adsorbent. फिर से एक और बार देख लेते हैं. स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन एड्सॉर्बेंट इज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एड्सॉर्प्शन per gram of adsorbent. Greater the specific area of an adsorbent, greater will be the adsorption. The specific area of an adsorbent can be increased by making the surface rough. The pores must be large enough to allow penetrations of gas molecules. सो स्पेसिफिक एरिया जितना ज्यादा होगा, स्पेसिफिक एरिया यानी सरफेस एरिया अवेलेबल पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, उतना ही ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स सॉलिड के अंदर पेनिट्रेट करेंगी यानी सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएंगी. इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज हाउ डज प्रेशर ऑफ अ गैस इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. So the extent of adsorption increases with the increase of pressure of the gas. अगर ज्यादा प्रेशर लगेगा गैस पर तो extent of adsorption बढ़ता जाएगा. The extent of adsorption is measured as x upon m, where m is the mass of adsorbent and x that of एड्सॉर्बेट. तो देखिए एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये हम x बाय m से बताते हैं. यहां पर m क्या है? m इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट और x क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेट. इसका मतलब जब x ज्यादा होगा तो ज्यादा मास ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो रहा है, और जब m कम होगा तो मतलब थोड़ा सा ही मास एड्सॉर्बेंट का ज्यादा अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर रहा है. इसका मतलब यह है कि जब x बाय m ज्यादा होगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा. अब हम देखते हैं द प्लॉट ऑफ x बाय m वर्सेस इक्विलिब्रियम प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. सो सिंस ये जो ग्राफ है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम बना रहे हैं, इसलिए हम इस ग्राफ को आइसोथर्म भी कहते हैं. एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. तो अब देखिए जैसे जैसे गैस के ऊपर प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे इसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता जाता है. पर एक पॉइंट ऐसा आता है जब प्रेशर और बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन और नहीं बढ़ता है. सो अगर ग्राफ देखा जाए तो पहले तो आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे और x बाय m बढ़ता जाएगा, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब प्रेशर बढ़ाने से भी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और फर्दर इंक्रीज नहीं होगा. सच अ प्रेशर इज सेड टू बी सैचुरेशन प्रेशर और TS. So this is the graph of x by m versus pressure at constant temperature, and it is also called as adsorption isotherm. आगे देखते हैं. It is evident from the graph that at a certain pressure
the adsorption reaches a maximum value. That is, the adsorption becomes saturated. And the corresponding pressure is called saturation pressure, PS. Beyond this pressure, the adsorption remains constant. So, saturation pressure पर आकर adsorption एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेगा और इससे ज्यादा अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो भी एड्सॉर्प्शन विल रिमेन कांस्टेंट. अब देखिए, एट लो प्रेशर्स x बाय m वेरीज लीनियरली विथ p. जैसा कि ग्राफ में हमने देखा था, जब प्रेशर्स लो थे तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा था वैसे वैसे x बाय m भी बढ़ता जा रहा था. So at low pressures x by m varies linearly with p. यानी x by m is proportional to p की पावर 1. प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हम रिमूव करेंगे तो हम लिख सकते हैं x by m is equal to k into p की पावर 1, where k is the proportionality constant. अब अगर बात करें at high pressures x by m is independent of p. यानी जब प्रेशर्स काफी हाई है, मोर देन सैचुरेशन प्रेशर, तब हम देखते हैं जो x by m है वो p से इंडिपेंडेंट हो जाता है. इसका मतलब x by m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0. प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हम हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं x by m इज इक्वल टू k इंटू p की पावर 0. सो लो प्रेशर्स पर x by m is equal to k into p की पावर 1. हाई प्रेशर्स पर x by m is equal to k into p की पावर 0. सो हमने ये देखा कि लो प्रेशर्स पर x by m is proportional to p की पावर 1. एट हाई प्रेशर्स हमने देखा x by m is proportional to p की पावर 0. At intermediate pressures, the variation of x by m versus p can be expressed as x by m is proportional to p की power 1 upon n, where n is greater than 1. यानी x by m is proportional to p की power some fraction. So, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देंगे तो हम लिख सकते हैं x by m इज इक्वल टू k इंटू p की पावर 1 अपॉन n, वेयर n इज सम नंबर विच इज ग्रेटर देन 1. अब अगर इसमें आप दोनों तरफ log ले लें तो ये इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी. log ऑफ x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1 by n log p. यानी अगर हम log x by m वर्सेस log p का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन. लेट अस डू दैट. अ ग्राफ ऑफ log x by m versus log p will be a straight line जिसकी स्लोप कितनी होगी? 1 by n के बराबर, और जिसका y इंटरसेप्ट कितना होगा? log k के बराबर. तो यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा. ये y इंटरसेप्ट कितना है? log k के बराबर, और इस ग्राफ की स्लोप कितनी है? स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन n. सो ये जो रिलेशन आया है log x by m वर्सेस log p के लिए फॉर सम इंटरमीडिएट प्रेशर, ये जो रिलेशन है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही है, हम सिर्फ प्रेशर वेरी कर रहे हैं. सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज Freundlich adsorption
आइसोथर्म। आइसोथर्म इसलिए क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, सिर्फ प्रेशर बदला जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रेंडलिच adsorption isotherm. All about Friendlich adsorption isotherm. बेसिकली फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करे गए, प्रेशर वेरी किया गया और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन मेजर किया गया, तो जो ग्राफ बना उसकी जो इक्वेशन है वो कहलाती है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इट इज कंप्लीटली एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसके अलावा एक और एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है जो लैंगम्यूर ने दिया था, और वो एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर, Langmuir's adsorption isotherm, उन्होंने ये अजम्पशन लिया था कि जो भी मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो रहे हैं वो एक सिंगल लेयर बना रहे हैं, यानी मोनो लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मल्टी लेयर वो नहीं बना रहे हैं, और कंप्लीटली सरफेस को आकर गैस के मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब कर रहे हैं। फिर उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था, थ्योरेटिकल फॉर्मूला था, इट वाज गिवन एज x बाय m इज इक्वल टू a इंटू p अपॉन 1 प्लस bp। यहां पर p इज द प्रेशर ऑफ द गैस, वेयर एज a एंड b आर कांस्टेंट्स। So this was a theoretical formula given by Langmuir. ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही मेजर होता है। सो यहां पर हम कहते हैं Langmuir adsorption isotherm states x by m is equal to a into p upon 1 plus bp। और अगर आप ध्यान दें यहां पर, तो Langmuir adsorption isotherm और फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ये लो प्रेशर पर और हाई प्रेशर पर सेम रिजल्ट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लो प्रेशर्स की बात करें, अगर प्रेशर्स लो हैं, वेरी लो प्रेशर्स, तो ये जो बीपी की वैल्यू होगी ये 1 के मुकाबले काफी छोटी हो जाएगी, यानी एट वेरी लो प्रेशर्स हम 1 के मुकाबले बीपी को इग्नोर कर सकते हैं। तो एट लो प्रेशर्स बीपी कैन बी इग्नोर्ड, यानी क्या आ जाएगा, x बाय एम इज इक्वल टू a इंटू पी। तो यानी लो प्रेशर्स पर क्या आ रहा है, x बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। यही रिजल्ट तो फ्रेंडलिच ने भी बोला था, वो एक्सपेरिमेंटल था, ये थियोरेटिकल है। इसके अलावा अगर हाई प्रेशर्स की बात करें, एट वेरी हाई प्रेशर्स, अगर प्रेशर हाई है इसका मतलब बीपी काफी बड़ा टर्म हो जाएगा, और अब हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ बीपी। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बाय एम इज इक्वल टू एपी अपॉन बीपी, और प्रेशर टर्म्स कट गए, यानी x बाय एम इज इक्वल टू a बाय बी। यानी एट हाई प्रेशर्स हमें क्या मिल रहा है, x बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 0। तो फ्रेंडलिच ने भी तो यही कहा था कि हाई प्रेशर्स पर x बाय एम प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो Langmuir and Freundlich, they agree on very low pressures and very high pressures. हाँ, इंटरमीडिएट प्रेशर्स के लिए Langmuir का एक्सप्रेशन अलग आएगा और Freundlich का एक्सप्रेशन अलग आएगा। देखते हैं कि एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी होता है। As adsorption is accompanied by release of heat energy, so
In accordance with Le-Chatelier's principle, the increase of temperature should decrease the extent of adsorption. ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं, और एड्सॉर्प्शन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है. दिस हैज इंडीड बीन फाउंड टू बी सो. A plot of x by m versus temperature at constant pressure is called adsorption isobar. x by m का plot with respect to temperature keeping pressure as constant, और pressure constant है इसलिए हम इसको बोलते हैं adsorption isobar. आगे देखते हैं. In the case of physical adsorption, x by m decreases with increase of temperature. जैसा कि expected था कि temperature बढ़ेगा तो x by m decrease होगा. Whereas in the case of chemical adsorption, x by m initially increases with temperature and then decreases. The initial increase is due to the fact that chemisorption requires activation energy. chemisorption के केस में activation energy की जरूरत होती है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर अकर होना है तो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ता है. एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस करने के लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत होती है. तो इनिशियली केमिसॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, और एक बार रिएक्शन हो गया और बॉन्ड्स बन गए तो उसके बाद फिर केमिसॉर्प्शन आल्सो डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर. So that is the difference between physisorption and chemisorption. Physisorption decreases, x by m decreases with the increase of temperature, whereas in the case of chemisorption, x by m initially increases and then decreases with the increase of temperature. So now let us look at in the form of graph. अब इसी बात को हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं. x by m वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन. फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे x by m की वैल्यू कम होती जाती है. सो इस तरह का ग्राफ ऑब्टेन होता है. वहीं अगर x by m का ग्राफ वर्सेस टेम्परेचर फॉर केमिसॉर्प्शन अगर हम देखें तो इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज होने पर x by m increases and afterwards it decreases with temperature. So initially कुछ टाइम तक, कुछ टेम्परेचर तक x by m की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बाद में फिर ये कम होती जाएगी, just like physisorption. So this is the difference between physisorption and chemisorption in terms of their variation with temperature. Is activation of solid. Activation of adsorbent means increasing its adsorbing power. This is increased by increasing the specific area, either by making the surface rough or by breaking the solid into smaller molecules. तो अगर हम जो adsorbent है उसके सरफेस को एक्टिवेटेड कर दें तो गैस मॉलिक्यूल्स का एड्सॉर्प्शन बढ़ जाता है. और एड्सॉर्बेंट को एक्टिवेटेड कैसे किया जाता है? आइदर बाय मेकिंग द सरफेस रफ और बाय ब्रेकिंग द सॉलिड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सम सॉलिड्स आर केपेबल ऑफ एड्सॉर्बिंग certain solutes from the solution. This property is made use of in adsorbing coloring matter
from solutions of organic substances. Raw cane juice is decolorized by activated charcoal. Similarly, charcoal absorbs oxalic and acetic acid dyes from their aqueous solutions. Friendlich adsorption isotherm is also applicable to solutions by replacing the pressure term by the concentration of adsorbates in solutions. The relationship is modified as follows: x by m is equal to k c की पावर 1 by n. गैसेस के केस में यहां क्या होता था? k इंटू पी की पावर 1 by n, और सॉल्यूशंस के केस में x by m is equal to k into c की पावर 1 by n, where c is the concentration of adsorbates in solutions. अगर हम log ले लेते हैं दोनों तरफ तो हमें मिल जाएगा log of x by m is equal to log k plus 1 by n log c. A graph between log x by m and log c is a straight line. हम देखेंगे about thermodynamics of adsorption. तो देखिए, एड्सॉर्प्शन जो है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी अगर हम चारकोल को गैसेस के पास लेकर जाएंगे तो गैसेस स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप ही आकर चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएंगी. सो इसका मतलब ये है कि सिंस एड्सॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसका जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होता है. फॉर एड्सॉर्प्शन डेल्टा जी इज नेगेटिव. डेल्टा एच की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन डेल्टा एच इज ऑल्सो नेगेटिव. एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसमें हीट रिलीज होती है, इसका मतलब डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव होता है. जो तीसरा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर हमें देखना होता है वो है डेल्टा एस. व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी. तो जब कोई गैस किसी सरफेस पर आकर एड्सॉर्ब हो रही है तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो रही है. पहले गैस ज्यादा रैंडम थी, जब सरफेस पर वो एड्सॉर्ब हो गई तो इट हैज बिकम लेस रैंडम, यानी एंट्रोपी घट रही है, रैंडमनेस कम हो रही है, इसका मतलब एंट्रोपी भी कम हो रही है, और डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव. सो फॉर एड्सॉर्प्शन all of these thermodynamic parameters are negative. Lastly, हम देखते हैं applications of adsorption. First is activated charcoal is used in gas mask to remove poisonous gases such as COCl2, phosgene, Cl2, SO2, etc. Second, animal charcoal is used to remove coloring matter from sugarcane juice in the manufacture of sugar. Third, ion exchange resin is used to remove hardness of water. ये टॉपिक आपने क्लास 11th में हाइड्रोजन चैप्टर में देखा होगा. वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए आयन एक्सचेंज रेजिन्स का यूज होता है. They are also based on the principle of adsorption. Fourth is several organic compounds are purified by chromatographic adsorption. So chromatography is a technique for purification of organic compounds and it is also based on the principle of adsorption. Let us look at few more applications of adsorption. Fifth number पर सिलिका जेल is used for removing humidity. आपने कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखे होंगे जिनके बॉक्स में एक वाइट कलर का पैकेट आता है जिसके ऊपर सिलिका जेल लिखा रहता है. तो सिलिका जेल का यूज क्या होता है कि वो ह्यूमिडिटी को रिमूव करता है, और वो ह्यूमिडिटी को रिमूव कैसे करता है? बाय एड्सॉर्बिंग द वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स को एड्सॉर्ब करके सिलिका जेल
ह्यूमिडिटी को रिमूव करता है. सो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एड्सॉर्प्शन. Next application is the catalytic effect of a number of catalysts like spongy iron in the manufacture of ammonia and nickel, platinum or palladium used in the reduction of unsaturated hydrocarbon is based on the principle of adsorption. So that's it for the topic of adsorption. In the next lecture, we will cover the topic catalysis. Thank you.